Dear students, a warm good morning to all of you. So, another kind of spectroscopy, that's vibrational spectroscopy. So, same things you discussed in the rotational spectroscopy, that's conscience, what else? Specific selection rule, fine, microwave spectra, rotational spectra. So, all things we need to discuss over here as well. Fine. So, let's start. These spectra, which spectra? Vibrational spectra. These spectra originate from transitions induced between the vibrational energy levels of a molecule. Fine. Obviously vibration energy उसमें क्या था rotational, इसमें क्या होगा vibrational. So these spectra originate from transitions induced between the vibration energy levels of a molecule but on the absorption of radiation, but कौन सी radiation? Belonging to the infrared region, means IR radiation. IR radiation. As I have already discussed with you, which type of radiation you use, which type of spectroscopy. So in vibrational spectroscopy, the radiation used for vibrational spectra कौन सी radiation? IR radiation. IR मतलब infrared. Fine, infrared radiation or infrared region. Plus इसका range. So infrared region of range कहाँ से कहाँ तक? 400 to 4000 centimeter inverse. This is the spectral range. So in which type of spectroscopy, which type of radiation you used, and what's the spectral range of that radiation? Fine. These are the important things you need to discuss in all, you need to remember in all types of spectroscopy जो भी आपको पढ़ लेना है. Fine. So IR radiation and IR range 400 to 4000 centimeter inverse. आपको बुक में ऐसे भी मिलेगा 500 to 4000 centimeter inverse. So this वाला पैरामीटर ये आप इजीली याद रख सकते हो 400 to 4000 centimeter inverse. ठीक है, ये भी याद रखना है. तो ये भी किसी बुक में आपको मिलेगा, आप ये भी याद रख सकते हो. फाइन. एंड हो गई ये. Therefore the above statement clearly justifies the title infrared or vibrational spectroscopy, because radiation you used in vibrational spectroscopy is IR radiation. That's why it's also called what? Vibrational spectroscopy is also called IR spectroscopy. IR spectroscopy. Fine. So why vibrational spectroscopy is called IR spectroscopy? Because the radiation you used for a molecule to undergo vibration, or for a molecule to undergo vibrational transitions, or for a molecule to show vibrational spectra, IR radiation is used. Fine. And that's why it's also called IR spectroscopy. Now the question is कि जैसे आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखी कंडीशंस, और इन अदर सेंस वी कैन से क्या सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाएंगे? क्या सारे मॉलिक्यूल्स IR रेडिएशंस के साथ रिएक्ट हो जाएंगे? क्या सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा दिखाएंगे? आंसर इज नो. आंसर इज नो. कुछ तो होने चाहिए मॉलिक्यूल में कि जो क्या होगा, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जो IR रेडिएशन के साथ रिएक्ट, कुछ ना कुछ तो होगा मॉलिक्यूल में ऐसा. ठीक है, तो वो क्या है? सो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रीरिक्विजिट्स or prerequisites for a molecule are conditions. ठीक है, for a molecule to absorb कौन सी रेडिएशन? IR रेडिएशन. IR रेडिएशंस. ठीक है, तो क्या है, क्या होना चाहिए? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं लिखूँगी. पहले मैं आपको बताती हूँ, जो IR रेडिएशन के लिए मॉलिक्यूल को रिएक्ट जो होना है IR रेडिएशन के साथ, मॉलिक्यूल में होना क्या चाहिए? मॉलिक्यूल में होना चाहिए क्या? डाइपोल मोमेंट. मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? सो वी कैन से IR स्पेक्ट्रा आर शोन बाय ओनली दोज मॉलिक्यूल्स हुज वाइब्रेशनल मोशन. फाइन. IR स्पेक्ट्रा, आई विल राइट इट डाउन. IR स्पेक्ट्रा are shown
are shown by only those molecules, कौन से molecules, whose vibrational motion, fine, whose vibrational motion is accompanied by a change in dipole moment. उसमें क्या था, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आप कंपेयर करोगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ, उसमें कंडीशंस थे कि मॉलिक्यूल को जो डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए, फाइन। लेकिन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक तो परमानेंट होना ही चाहिए, ठीक है, प्लस वो डायपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए जब मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन होगा, फाइन। जब मॉलिक्यूल वाइब्रेशन दिखाएगा, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, तो मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन के समय इसका जो डायपोल मूवमेंट है ना वो बिल्कुल चेंज होना चाहिए, फाइन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आर प्रीरिक्विजिट फॉर ए मॉलिक्यूल टू एब्सॉर्ब आईआर रेडिएशन। होप आपने ये याद रखा होगा, ठीक है। कौन सी रेडिएशन, दूसरा नाम क्या है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिकॉज आईआर रेडिएशन इज यूज्ड, व्हाट्स द स्पेक्ट्रल रेंज, ठीक है, एंड कंडीशन प्रीरिक्विजिट, तो मॉलिक्यूल का जो डायपोल मूवमेंट है ना वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। Now there are two treatments, classical treatment and quantum treatment, या classical concept and quantum concept. Let's see what's the classical treatment of this vibrator or diatomic molecule which rotates as a vibrator, ठीक है। जैसे उसमें आपने रोटर बताया था, जो रोटेशन दिखाता है, इसमें हम बताएंगे डायatomic vibrator, ठीक है। Rather we can say a diatomic molecule with masses m1 and m2 joined by a chemical bond vibrates as a one-dimensional simple harmonic oscillator, SHO, हम SHO लेते हैं, ठीक है, that is simple harmonic oscillator, ठीक है। Classically the vibrational frequency of a mass point m connected by a force constant k is given by, जो क्लासिकल ट्रीटमेंट होता है ना, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी न्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 पाई अंडर रूट k divided by mu. I will come to this formula. Before that, let me take a diatomic vibrator or molecule. So this diatomic molecule having mass m1, this is m2, connected by a internuclear distance r, ठीक है ना, यानी केमिकल बॉन्ड। अच्छा, ये कैसे रोटेशन दिखाएगा ये मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको लेंगे r डिस्टेंस, आर सीधे, नॉट R1 R2, ठीक है, सीधे आर लेंगे इसको। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो वाइब्रेटर है ना कैसे, ये टू एंड फ्रो मोशन दिखाता है, ठीक है, पहले एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर वापस एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम। सो दिस इज कॉल्ड अ टू एंड फ्रो मोशन, इसको क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। और ड्यूरिंग दिस टू एंड फ्रो मोशन मॉलिक्यूल को एक्सपेंशन भी होगा, मॉलिक्यूल को कंप्रेशन भी होगा। ऑब्वियसली बात है, आप ऐसे इमेजिन करो, आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने होल्ड किया किसी पॉइंट पर और दोनों एंड्स पर आपने 2 बॉल्स इसको रखे, ठीक है, आप इसको छोड़ दो, ठीक है, होल्ड है बीच में और आपने इसको छोड़ दिया, तो होल्ड किया आपने इसको ऐसे और फिर छोड़ा, आप देखो वो वाइब्रेशन दिखाएगा। वो क्या दिखाएगा, पहले एक्सपैंड हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, फिर एक्सपैंड कंप्रेस, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन दिखाएगा। तो आप इमेजिन करोगे जब मॉलिक्यूल को एक्सपेंशन होगा ये बॉन्ड इंक्रीज होता है, ठीक है, दिस इज m1, दिस इज m2, और इस कंडीशन को आप क्या बताएंगे, एक्सपेंशन, क्या बताएंगे, एक्सपेंशन। और जब कंप्रेस होगा ये बिल्कुल इससे कम आएगा, इधर ये आपको ऐसे बनेगा, ठीक है, उससे कम दिखाना, ठीक है। सो दिस इज m1, दिस इज m2, ये नॉर्मल केस है, ये एक्सपेंशन है, ये क्या है, कंप्रेशन, दिस इज द कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन, फाइन। सो दिस आर द 2 केसेस कि मॉलिक्यूल को कंप्रेशन भी होगा, मॉलिक्यूल को क्या होगा, एक्सपेंशन भी होगा। सो इस केस के लिए जो आप ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हो, जिसको क्या होता है, जो वाइब्रेट करता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी स्मूथली ये करता है अपनी वाइब्रेशन, ये बॉन्ड बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता है, हार्मोनिक स्टे,
ठीक है। हार्मोन स्टीम मतलब ये बिल्कुल स्मूथली जा रहा है, यानी बॉन्ड बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहे हैं। मीन, एक्सट्रीम मीन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, बिल्कुल भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं इट्स वाइब्रेटिंग एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर यानी वाइब्रेटर, ठीक है, जिसको ऑसिलेशन हो और वाइब्रेशन हो। तो इस केस के लिए जो वाइब्रेशन फ्री मतलब ये मॉलिक्यूल किस वाइब्रेशन से ये अपनी मोशन दिखाता है, अपनी वाइब्रेशन करता है, दैट्स कॉल्ड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी न्यू। और वो किसके बराबर होता है, इट्स अ क्लासिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। और वो किसके बराबर होता है, न्यू इज इक्वल टू 1/2 बाई √k डिवाइड बाई म्यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो कि एग्जाम में आ सकता है, आया भी है एक बार। तो what are different parameters, this is a constant term, and this mu is called what, it's called reduced mass. Reduced mass. Mu is called what? It's called reduced mass. It's called reduced mass or effective mass. Effective or reduced mass. मैं लिखूँगी effective. reduced और effective mass. और ये म्यू किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर किसके बराबर, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। याद रखना, ठीक है। इट्स अ कंबाइंड मास, रिड्यूस्ड मास, इफेक्टिव मास। तो ये म्यू मास है, लेकिन अगर एक होगा, एक ही एटम होता तो आप सिंपल m लिखते, लेकिन ये इट्स अ कंबाइंड रिड्यूस्ड और इफेक्टिव मास। और ये किसके बराबर होता है, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। नाउ ज़्यादा मास होगा, रिड्यूस्ड मास ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियसली बात है, जो जितना हैवी होगा उसको इतना ही वो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। तो कैन यू टेल मी नाउ व्हाट्स दिस के? के इज़ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन दिस इक्वेशन, इट्स कॉल्ड फोरस कॉन्स्टेंट। इट्स कॉल्ड फोरस कॉन्स्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, फोरस कॉन्स्टेंट। किसको, के को। और ये जो फोरस कॉन्स्टेंट है ना, इसको हम मेजर करते हैं, इसका जो यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर। लेकिन कौन सा यूनिट है ये है CGS यूनिट, लिखूँगी CGS यूनिट, ठीक है। इन SI यूनिट में इसको कैसे मेजर करते हैं, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। नाउ आपको इस यूनिट से ही समझ आ रहा होगा कि ये फोरस कांस्टेंट का मतलब क्या है, ठीक है। फोरस कांस्टेंट मतलब क्या, फोरस कांस्टेंट मतलब किस फोरस से ये वाइब्रेटर, ये ऑसिलेटर, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेशन दिखाता है, और साथ साथ में इसकी जो डिस्टेंस है ना वो कितनी चेंज हो जाती है, यानी किस फोरस से ये अपनी डिस्टेंस चेंज होता है इसकी, यानी न्यूटन पर मीटर, ठीक है। फोरस पर डिस्टेंस, समझ में आ रही बात। सो दिस फोरस कांस्टेंट वी कैन राइट इट डाउन, द एसेंस ऑफ दिस फोरस कांस्टेंट के। एसेंस मतलब इम्पोर्टेंस, एसेंस क्या हो गए, इम्पोर्टेंट। Now the essence of the force constant के नंबर क्या एसेंस है कि जो फोरस जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के है, ठीक है। के ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये फोरस कांस्टेंट का एसेंस इंपॉर्टेंस क्या है कि जो के होता है ना, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा ना उसका उतना ही के होगा, ठीक है। जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ही के होगा, और उतना ही उसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी होगा, ठीक है ना। वी कैन से इट दिस के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, तो फोर्स कांस्टेंट भी क्या होगा, कम। सो वी कैन से इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, फोर्स कांस्टेंट कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा, फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एसेंस ऑफ फोर्स कांस्टेंट, यानी ये हमें देता है कि इंफॉर्मेशन किसके रिलेटेड कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है, ज़्यादा है कि कम है, कौन, फोर्स कांस्टेंट के। फाइन, तो होप इतना आपको समझ आया होगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय अ पैराबोलिक हुक्स लॉ। मैंने क्या बताया, आई विल रिपीट इट। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ठीक है,
और क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन। इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन जहाँ उसको ना एक्सपेंशन होता है ना कंप्रेशन होता है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजिशन में, फ्रॉम द इज गिवन बाय अ पैराबोलिक हुक्स लॉ। कौन सा लॉ? पैराबोलिक हुक्स लॉ। पैराबोलिक, आपने सुना होगा फिजिक्स में, पैराबोलिक हुक्स लॉ, पैराबोलिक हुक्स लॉ। तो वो किसके बराबर है? दैट्स V, ठीक है। V इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल एनर्जी है V, ठीक है। आप PE डायरेक्टली, चलो आप PE लिखो, PE इज इक्वल टू, लेकिन कौन सी पोटेंशियल, किसके लिए? डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए पोटेंशियल एनर्जी। किस पोटेंशियल एनर्जी से ये डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या अपनी वाइब्रेशन दिखाता है, ऑसिलेशन दिखाता है, ठीक है। सो दैट्स इक्वल टू 1/2 K इंटू एक्स स्क्वायर। सो हियर आपने एक्स आर रखा तो आप भी करो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/K इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, या एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर, वन एंड द सेम थिंग। सो वी कैन से दिस पोटेंशियल एनर्जी, अब क्या है इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स, आर इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एक्स इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, P is potential energy, and this K you already know about it, it's a force constant K. So we can say potential energy, it's directly proportional to the force constant K, ठीक है ना, या potential energy it's proportional to the किसके? internuclear distance R, ठीक है। सो वी कैन से ज़्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो दिस कैन बी ग्राफिकली शोन एज, ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? This is here potential energy, rather you can write it down molecular potential energy, ठीक है। ऐसे इंक्रीज होगा, ठीक है, y एक्सिस एंड x एक्सिस के थ्रू आप शाबाश आप क्या डाल रहे हो? x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो r है, ठीक है, या r लिख सकते हो, ठीक है। एक्सिस इंटरन्यूक्लियर, इसको लिखना है यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस x या r, ठीक है। तो आपका ग्राफ बिल्कुल पैराबोलिक आता है, is like this, ठीक है। तो इसको थोड़ा यहाँ शार्प बनाना, ठीक है, आप अच्छे से बना लेना, आई एम नॉट गुड टू ड्रा समथिंग। इसको यहाँ पर शार्प बनाना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ट्रायंगल जैसे यहाँ पर बनाना, पूरा ट्रायंगल नहीं, आई मीन टू से शार्प, इसका यहाँ सिर्फ पॉइंट टच होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है इस पैराबोला, सो पैराबोलिक हुक्स लॉ क्या बताता है कि देखो ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस है और ये क्या है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना किसकी? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, वो क्या है? ज़ीरो है। ओब्वियसली बात है, मीन पोजीशन पर कुछ भी डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, तो उस पर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ज़ीरो। फिर आते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, फिर वापस आता है मीन पोजीशन, फिर जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, इस पर भी क्या है? ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज़ द पैराबोलिक हुक्स लॉ। हुक्स ने बताया कि जो ग्राफ होता है बिटवीन मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये पैराबोला लाइक है। तो पहले एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम, तो ऐसे अपनी क्या वाइब्रेशन दिखाता है। होप आपको ये सारा समझ आया होगा। सो to see the connection between the shape of this molecular potential energy curve and the value of K, we can expand the potential energy around its minimum, यहाँ पर, ठीक है, around its minimum by using a Taylor series, ठीक है। चलो forget about this Taylor series, ये थोड़ा आपको हायर कंसेप्ट में आप चले जाओगे। अगर हम टेलर सीरीज़ पर जाएंगे तो आपके लिए इतना काफ़ी है, आप यही तक कर लेना कि दिस वाज द व्हाट क्लासिकल ट्रीटमेंट। ये सारा क्या था? क्लासिकल ट्रीटमेंट। अब हमें आना है क्वांटम ट्रीटमेंट पर, ठीक, उसके लिए हम अलग वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन ये था क्लासिकल ट्रीटमेंट। क्लासिकल ट्रीटमेंट में जितना आपको समझना था इतना काफ़ी था, ठीक है। और क्या था? एक तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको IR भी बोलते हैं। क्यों IR रेडिएशन यूज्ड? व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट? कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे IR रेडिएशन के साथ, जिनके पास क्या होगा? जिनका डायपोल मूवमेंट चेंज होना चाहिए, ठीक है। प्लस उसका स्पेक्ट्रल रेंज IR का दैट्स 400 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। होप आपको इतना सारा समझ आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।